اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کاہنان کا آمون کی حمایت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، حرم حب اور باد آمون کے درمیان لڑائی، زلیخا کا آمون کے خلاف بولنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اخناتون کو بتاتے ہیں باد آمون نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر گندم کے گوداموں پر حملہ کیا، گندم کو نذر آتش کیا مگر آگ پر قابو پا لیا گیا اور بہت سے کارکنان اور عوام کو قتل کر دیا اور کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ اخناتون بہت غصے میں آ جاتے ہیں، بہت برہم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ دن دہاڑے ہمارے گوداموں اور سپاہیوں پر حملہ کریں۔ حرم حب کہتا ہے جناب آپ پریشان نہ ہوں، اس واقعہ کے سرکردہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کاہنان آمون کو بغاوت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اخناتون حرم حب کو حکم دیتے ہیں ہم حکم دیتے ہیں معبد کو کاہنان سے خالی کروا کر معبد پر تالے لگائے جائیں اور سپاہیوں کو گرفتار کر کے قید میں ڈالا جائے اور آمون کے مجسمے کو نابود کر دیا جائے۔ حرم حب کہتا ہے حکم کی تعمیل ہوگی اور وہ دربار سے چلا جاتا ہے۔ زلیخا قصر سے باہر جا رہی ہوتی ہے، اس کی دونوں خادمائیں پوچھتی ہیں بانو کہاں چلی؟ زلیخا کہتی ہے اب مجھ سے مزید یہاں نہیں رکا جا رہا، میں دیکھنا چاہتی ہوں یوسف کامیاب ہوگا یا نہیں۔ مصر کے خداؤں کی یوسف کے خدا کے ساتھ جنگ ہے، اگرچہ میں جانتی ہوں فتح آخر کس کی ہوگی۔ زلیخا محل سے باہر چلی پڑتی ہے اور پیچھے پیچھے خادمائیں بھی چل پڑتی ہیں۔ ادھر کاہنان معبد کے باہر اعلان کرتے ہیں آئیے آئیے خداؤں کی حفاظت کیجیے، خدائے مصر خطرے میں ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں آمون کا دسترخوان آپ کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے، آئیے کھانا کھائیے، آمون کی حفاظت کیجیے۔ مصر کا ہزاروں سال پرانا آئین آمون خطرے میں ہے، آئیے اس کی حفاظت کیجیے۔ یوزارسف نئے خدا کو متعارف کروا رہا ہے، آئیے اپنے خدا کا تحفظ کیجیے، آئیے آمون کے مہمان بنیے، آئیے اپنے خدا کے لیے ڈٹ جائیے۔ اجازت مت دیجیے کہ آپ کے آباء و اجداد کا قدیمی آئین یوزارسف کے گھوڑوں سے پامال ہو جائے۔ اپنے آباء و اجداد کے آئین کی اور اپنے خدا کی حفاظت کیجیے۔ چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ خدا جو اپنے کاہنوں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے اور اپنے پیروکاروں کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں کرتا، ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے۔ دیگر لوگ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، ہاں ہاں بالکل ایسا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ کاہن کہتا ہے تم لوگ کافر ہو چکے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کافر ہو گئے ہیں، ہم آمون کو خدا سمجھنے سے منکر ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ساری زندگی ہمارے پیٹ کاٹتے رہے ہو کاہنوں، آج ہمیں کھانا کھلا رہے ہو۔ زلیخا اور اس کی خادمائیں کھڑی یہ سب مناظر دیکھ رہی تھیں۔ بانو زلیخا کی حالت ایک دم خراب ہو جاتی ہے۔ خادمائیں اسے پکڑ کر ایک جگہ بٹھاتی ہیں اور پوچھتی ہیں بانو زلیخا کیا ہوا؟ زلیخا کہتی ہے مجھے کچھ یاد آ گیا ہے، یوسف آنے والے حالات سے باخبر تھا، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ یوزارسف نے پیشین گوئی کی تھی ایک دن آئے گا جب مصر تہہ و بالا ہوگا، حاکم محکوم زیر دست خود کفیل ہو جائیں گے، آئین آمون ختم ہو جائے گا، کوئی بھی آئین آمون کا پجاری نہ رہے گا۔ یوسف نے کہا تھا یہ انقلاب ایک مرد آسمانی کے ذریعے خدا کی وساطت سے ہوگا، اور آج میں یوسف میں اس مرد آسمانی اور یوسف کے ذریعے وساطت خداوندی کو دیکھ رہی ہوں۔ خادمہ کہتی ہے تعجب ہے، یوزارسف یہ سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ زلیخا کہتی ہے آج جو ہو رہا ہے اس کا ہو بہو نقشہ اس نے 30 سال پہلے کھینچ دیا تھا۔ خادمہ کہتی ہے یوزارسف پیغمبر خدا ہے، خدا کا اپنے پیغمبر سے رابطہ ہے۔ خادمہ پوچھتی ہے بانو کیا آپ آمون کی حمایت کے لیے معبد نہیں جائیں گی؟ ایک وقت میں آپ اس کی بیوی ہوا کرتی تھی۔ زلیخا کہتی ہے معبد جو یوزارسف کے خلاف اقدام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا میں اس کی حمایت کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ کاہنان کھانے کا لالچ دے کر لوگوں کو معبد کے اندر بلا لیتے ہیں اور وسیع کھانا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید، آپ معبد آمون کے مہمان ہیں، یہ جو کچھ ہے آمون کا عطا کردہ ہے، آمون ہمارا قدیمی خدا ہے اور ہمارا پشت بنا ہے، یوزارسف کے خدا کے مقابل اس کی مدد کیجیے، حمایت کیجیے۔ ایسے جملے کہتے جا رہے ہیں اور انہیں بہترین کھانے اور کباب پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں
आफरीन, आमून, आफरीन। बद आमून अपने लश्कर के साथ माबद की छत पर चढ़ जाता है। बद आमून कहता है, हम आमून की खातर अपनी जानें दे देंगे। अपनी जान आमून की खातर देना अब्दी सुकून के मुतरादिफ होगा। हमारी जानें माबद और आमून पर कुर्बान हो जाएंगी। खाना तनावल फरमाइए, कहनान कहते हैं, और युजारसिफ के लश्कर के मुकाबले में मदद कीजिए। दुश्मनान आमून के ख़िलाफ़ कमर बस्ता हो जाइए, आमून की हिफाजत कीजिए। एक अबरानी चरवाहा हमारे अब्बा अजदाद की ज़मीन पर एक नए आइन को क्यों नाफिज कर रहा है? सरज़मीन मिस्र का फरमा रवा युजारसिफ के हाथों बिक गया है। वो उसके हाथों का खिलौना बना हुआ है। वो काफर हो गया है। उस पर नफरीन, जिसने अपने बाप दादा के आइन को बदल दिया है। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे, हम उनको मार डालेंगे। युजारसिफ नफरीन, आमून, आफरीन, आफरीन वो नारे लगाते हैं। माबद के बाहर कहनान कहते हैं, माबद आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबद आमून में कहत के कोई आसार नहीं है। आमून का वसी दस्तरखान आपका मुंतज़िर है। आमून अपने तरफदारों और पैरोकारों को खुश आमदीद कहता है। आइए लजीज़ खाने से लुत्फ़अंदोज़ होइए। आइए खुदाओं के खुदा आपकी मदद के तलबगार हैं। युजारसिफ के मुकाबले में अपने खुदा की हिफाजत फरमाइए। इस चरवाहे के मंसूबों को नाबूद कर दें। जुलेखा माबद के बाहर बैठी ये सब मंजर देख रही होती है और सुन रही होती है। वो एकदम उठती है और कहनान से कहती है, बेचारा आमून खाना खिला खिला कर मदद मांग रहा है। और फिर कहने लगती है बड़े गुस्से से, ए कहनो, वो चरवाहा जो 12 साल से मिस्र को कहत के ज़माने में भी कई फर्मा रवाओं से बेहतर चला रहा है, लेकिन तुम माबद के काहनों और 3000 पुराने आइन के वारसों, तुम लोग आज गद्दागरी पर उतर आए हो। काहन कहता है, ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है, क्या खराफात बक रही हो? सुलेखा कहती है, तुम लोगों ने इस खराफात बकने वाली का कई सालों जूठा खाना खाया है। खुद से पूछो जुलेखा कौन है? तो दोनों काहन कहते हैं, जुलेखा हमसरे पोतीफार तुम हो। इतने में हुरमहुब अपने लश्कर के साथ माबद पहुंच जाता है। जुलेखा कहती है, ये तो सिपाहियों की चाप है। खादमा कहती है, मेरा ख्याल है ये सिपाही माबद पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं। जुलेखा कहती है, देखो इनका सिपह सलार युजारसिफ तो नहीं? खादमा कहती है, नहीं बानो, ये जनाब हुरमहुब हैं। जुलेखा कहती है, हुरमहुब अब इन पर रहम नहीं करेगा। खादमा कहती है, चलें यहाँ से चलते हैं। दूसरी खादमा कहती है, नहीं, हमें देखना चाहिए सरकारी लश्कर और हुरमहुब के साथ कहनान क्या करते हैं। खादमाएँ ज़बरदस्ती जुलेखा को वहाँ से ले जाती हैं। लश्कर को माबद के सामने देखकर गार्ड और कहनान भाग कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और माबद के दरवाजे बंद कर देते हैं। हुरमहुब सिपह सलार सरकारी लश्कर माबद पहुंचकर सरकारी हुक्म पढ़ता है। जनाब अखनातून का हुक्म, सिपह सलार हुरमहुब के नाम। हुरमहुब, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदाए आमून के मुजस्मे को नाबूद कर दो। आज से परस्तश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरम सज़ा का मुस्तहिक होगा। और आज से मर्द में मिस्र का सरकारी दीन दीन यकता परस्ती होगा। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहीम की पैरवी। कहनान माबद के अंदर लोगों को लश्कर का मुकाबला करने पर उकसाते हैं और कहते हैं, लानत अखनातून के लश्कर पर, लानत आमून के दुश्मनों पर, आमून पर जान लुटा देंगे। बाद आमून की हदायत पर सिपाही माबद की छत पर चढ़ जाते हैं और बड़ी बड़ी देगों में तारकोल उबालने के लिए रख देते हैं। देगों में तारकोल खोलने लगता है। कहनान और लश्कर असला से लैस माबद की छत पर चढ़कर बुलंदी से सारे मनाजर देखते हैं और अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। वो देखते हैं हुरमहुब बहुत बड़ी फ़ौज के साथ आया है। हुरमहुब उन्हें पुरस्कून और मुनज़्ज़म रहने का इशारा करता है। हुरमहुब सरकारी हुक्म सुनाकर कहता है, हथियार डाल दें और माबद का दरवाज़ा खोल दें। बाद आमून कहता है, तुम्हें क्या हो गया है हुरमहुब? तुम तो मिस्र के अजीम खुदाए आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी हमायत पर सिपह सलार लश्कर पर फायज हुए थे। फिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? हुरमहुब कहता है, जनाब आखनातुन मेरे लिए खुदाए ज़मीन व आसमान की तरफ से मुअज़्ज़ज़ और खुदाए फ़रज़ंद की हैसियत रखते हैं, और जब मैं उन्हें खुदावंदे आखनातून कहता हूँ तो मेरे लिए पहले फ़रमाने आखनातून और फिर फ़रमाने आतून है।
मैं खून रेज़ी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मुझे खून रेज़ी पर मजबूर किया गया तो मैं ये काम भी कर दूँगा। बादियामून अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, अपने खुदा की पासदारी और दिफा करो। हम आपको और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हुरमहुब कहता है, मुझे आखनातून ने हदायत की है, जहाँ तक हो सके सख्ती से इज्तनाब करूँ, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊँ। लिहाजा एक बार फिर कहता हूँ, हथियार डाल दें और माबद जैसी मुक़द्दस जगह पर आप बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब ना बने। बादियामून कहता है, मुक़द्दस जगह की पामाली और खुदाओं की लानत का बायस बनेगी। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं है। माबद के अंदर एक शख्स लोगों से मुखातिब होता है। गौर से सुने, बादे आमून कभी भी लोगों से रहम से पेश नहीं आता। मैं बरसों उसके साथ रहा हूँ और मैं देखता रहा हूँ कि वो किस तरह लोगों की तहस नहस कर रहा था। काहन उसे डांटता है और कहता है, ये क्या खराफात है, क्यों लोगों को खौफजदा कर रहे हो? बादे आमून कभी ऐसा नहीं कर सकता। बादे आमून और उसके सिपाही माबद का दिफा करेंगे। बादे आमून हार मानने को तैयार नहीं होता। हुरमहुब सिपाहियों को माबद का गेट तोड़ने का हुक्म देता है। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बादे आमून उन पर गरम गरम तारकोल डालने का हुक्म दे देता है। वो सिपाहियों पर गरम गरम तारकोल डालते हैं। हुरमहुब अपने तीर अंदाज़ों को हुक्म देता है, वो जो ही सर उठाएं तीर बरसा दो। तीर अंदाज बड़ी महारत से बादे आमून के सिपाहियों का निशाना लेते हैं। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद कत्ल हो जाती है। बादे आमून और बाकी मांदा सिपाही छत से भाग कर नीचे आ जाते हैं। हुरमहुब की फ़ौज माबद का गेट तोड़ने में कामयाब हो जाती है। हुरमहुब कहता है, बादे आमून, अगर तुम पहले ही हथियार डाल देते और मेरे सिपाहियों को कत्ल ना करते और ना ज़ख्मी करते, लेकिन अब तुम्हारे लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। बादे आमून कहता है, तुम्हें भी अपने सिपाहियों के साथ मर जाना चाहिए था। बादे आमून और हुरमहुब के दरमियान लड़ाई होती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। क्या आमून के पैरोकार आमून के लिए जान देने को तैयार होते हैं या नहीं? हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी खुदा की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगाही दीन को फैलाने में हमारे साथ ताउन करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।